Welcome back student, I am Santosh Misra and today we are going to discuss chapter 10 financial market. So student, what is financial market? Financial market is a market for creation and exchange of financial asset like share, bond, debenture. So financial market gives us to a platform for exchanging the securities. Financial market also mobilize the saving and channelizing them into most productive use. Household have savings and they have not any idea of how can we use, how can we use that fund in a productive way. They usually deposit their saving into a bank, and bank decided how can we make profit from these funds. So bank goes to the financial market, you can say stock exchange, and invest all the savings into the many, you can say mutual fund or say securities, and bank gains some interest or some earning from those investment and return back to the depositor. And so financial market mobilizing the saving and channelizing them into the most productive use. It helps to link the savers and investors by mobilizing fund between them. Any person if any person will go in the stock exchange through a broker, we can't directly involve in the financial stock exchange transaction. At that time we needed the broker. So if any person invest his money into the share or debenture, you can say through stock exchange, then company will get some fund and utilize that fund in a very productive manner. The person or institution by which allocation of fund is done are called financial intermediaries. Financial intermediaries. They bring together borrower and lender and make fund available to those willing to pay for their use. Household, saver, and business firm, investor, bank and financial market. Household savers goes to the banks and financial market, and banks and financial market provide some funds to the business firm, and business firm refund some interest, or you can say earn some profit and refund the interest of these fund, and bank in return bank returns some interest to the household. Then these intermediaries provide a link between the saver and investor. So what is the function of the financial market? First function and very important function is mobilizing of saving and channelizing them into the most productive use. Financial market facilitates the transfer of saving from saver to investor and thus help to channelizing surplus fund into the most productive use. हम अपना पैसा अपने पास रखे रहेंगे, हमको पता नहीं है, हम बैंक के पास जाते हैं और हम उसको लेके पैसा अपने पास रखे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यदि हमारे पास इतना आइडिया रहता, हमारे पास इतने रिसोर्सेज रहते कि हम उसको फैक्ट्री वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते, तो वहाँ से हमको अर्निंग हो सकती। नॉर्मली सेवर्स जो होते हैं वो बैंक के पास जाते हैं, उसको फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं या एनएससी वगैरह खरीद लेते हैं पोस्ट ऑफिस में, या कोई और सिक्योरिटी वगैरह खरीद लेते हैं, इससे उनको इंटरेस्ट मिलता है। अब सारे लोगों का, छोटे छोटे लोगों का, छोटे छोटे इन्वेस्टर का पैसा जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको कहीं
किसी के शेयर में, किसी कंपनी के शेयर में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और इस तरह वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो डिफरेंस रहता है इन डिपॉजिटरीज का, इन जो आपके जो लिंक होते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट की, वो अर्निंग होती है। सो स्टूडेंट, हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन इंटरैक्ट ऑन ऑब्जर्वर एंड इन्वेस्टर विच in turn helps in the determination of price of financial asset such as share and debenture। किस कंपनी के शेयर का क्या प्राइस होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये फाइनेंशियल मार्केट के ही द्वारा डिसाइड होता है, क्योंकि वहां पे जिसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, जिसका नेटवर्थ ज़्यादा है, उसके शेयर की प्राइस जो है इंक्रीज होती है। तो ये प्राइस को जो हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, क्या किस शेयर की प्राइस बढ़ रही है, आप देखते होंगे निफ्टी, सेंसेक्स, इनका जो है डेली का निफ्टी में कितनी कंपनी आती हैं? 50 कंपनीज आती हैं, और आपका सेंसेक्स जो होता है वो 30 कंपनीज का होता है। तो टॉप 30 कंपनी के शेयर का वैल्यू, तो ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है ये फाइनेंशियल मार्केट ही प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। जो फाइनेंशियल एसेट हैं हमारे पास, उनको अब शेयर लेके जाएंगे दुकान पे, बोलेंगे शेयर ले लो, शेयर ले लो, ऐसे तो करेंगे नहीं। उसका एक प्रॉपर मार्केट होना चाहिए कि हमको शेयर में हमने इन्वेस्ट किया है और हम चाहते हैं आज के आज हमको जो है शेयर को, इफ वी वांट टू सोल्ड दैट सिक्योरिटीज, देन at that time we will go to the financial market, and financial market provides the liquidity to the financial asset, that is called securities, share, debentures. Then financial market facilitate easy purchase and sale of the financial asset, thus it provides liquidity to them so that they can be easily converted into cash whenever required. So liquidity is maintained by the financial markets. Third point is provide liquidity to the financial. Fourth point is reduce cost of the transaction. Financial markets provide valuable information about the security which help in saving tune, efforts and money, and thus it reduce cost of the transaction. आप देखेंगे आप कोई भी इस तरह का न्यूज़ चैनल वगैरह भी देख सकते हैं, या सेबी भी जो स्टॉक एक्सचेंज है, बोर्ड है वो, या NSE, BSE, ये सब आपको डेटा प्रोवाइड करते रहते हैं, वहाँ स्क्रीन पे दिखता रहता है। तो आपको अपना टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना रहता है। अब हर कंपनी में जाके पूछेंगे तुम्हारे शेयर की क्या प्राइस है, वहाँ सारे शेयर लिस्टेड होते हैं, सबकी क्या प्राइस चल रही है, इस समय कितने में बिक रहा है, कितने में खरीदा जा रहा है, सब कुछ आपको पता लगता है। टाइप ऑफ आप चाहें तो moneycontrol.com है, आप moneycontrol.com पे भी सर्च करके आज आपका यही होमवर्क है, moneycontrol.com खोलिए और उसको देखिए। एक CNBC आता है चैनल, उसमें भी आप देखेंगे तो आपको शेयर मार्केट्स वगैरह के, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको इन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो आप एक बार देखिए कि क्या है, कैसे उसका हम कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं, ये सारे चीज़ें आपको, डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये सब आपको पता है, उसमें चलेंगे। शेयर किस तरह खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, सारे उसमें आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ द टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हैज़ 2 टाइप्स, कैपिटल मार्केट, इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, एंड मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। इन मनी market instrument is treasury bill, commercial paper, call money, certificate of deposit and commercial bill. Commercial bills means bills of exchange, promissory note, hundis, all things. And capital market has 2 types, primary market for new issue of the share and debenture, and secondary market, issued security are traded. So the participants of capital market is bank, investor, mutual fund, LIC and other.
controlled by the SEBI and participants of money market, RBI, commercial bank, investor, LIC and other. आप लोग म्यूचुअल फंड का नाम बार बार सुनते होंगे, मुथूट म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड में आप लोग जैसे म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो आप छोटे छोटे आप एक एक यूनिट तक परचेस कर सकते हैं। ये फंड जो बने रहते हैं, मुथूट वाला क्या करेगा, सारे इन्वेस्टर का पैसा लेगा और उसको बल्क में शेयर परचेस करेगा, अलग अलग सिक्योरिटी पोर्टफोलियो में वो परचेस करता है। जैसे किसी का आप परचेस करेंगे, किसी एक कंपनी का शेयर परचेस कर लिए, आपका पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन जो फंड वाले रहते हैं वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक का शेयर प्राइस यदि बढ़ रहा है तो वो दूसरे एक पूरी कंपनी में अकेले पैसा नहीं लगाते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट में भी लगा दिए, रिलायंस में भी लगा दिए, हर जगह लगा दिए। अब उससे क्या होगा कि कोई अभी जैसे टेलीकम्युनिकेशन का आप देख लीजिए, कोरोना के मार्केट में इसका मार्केट हाई होने लगा, तो कैसे होने लगा, तो अब टेलीकम्युनिकेशन में लगा दिए, कुछ एजुकेशन फील्ड में लगा दिए, अदर बैंकिंग कंपनीज में लगा दिए, सारे अलग अलग डिफरेंट टेक्सटाइल कंपनीज में लगा दिए। इन सारे कंपनीज में लगाते हैं तो कोई का प्राइस बढ़ता है और किसी का प्राइस घटता है, तो पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, हमारा पैसा डूबता नहीं है। तो ये फ़ायदा रहता है, हम छोटे छोटे यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का बेसिकली यही काम होता है, वहाँ पे बैठे रहते हैं, एनालिसिस्ट बैठे रहते हैं और वो यही काम करते हैं कि आपका पैसा सिक्योर रहे। It is enough for today. In next video, I will discuss the further topics. So thank you student, thank you so much.